वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026 से 27 पेश कर दिया है। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है जब रविवार को वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया गया है। इस बार के बजट में क्या कुछ है खास, चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। केंद्रीय बजट को दो भागों में विभाजित किया गया है, ए और बी, जिसमें बी भाग मुख्य रूप से कर प्रस्तावों और चुनिंदा अद्यतनों पर केंद्रित एक संक्षिप्त खंड के रूप में कार्य करता है, जबकि बजट के भाग ए में अधिकांश विस्तृत नीतिगत घोषणाएं शामिल है। यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का 15वां बजट है। सीतारमण लगातार 9वीं बार संसद में बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने पेश किए बजट में बायोफार्मा शक्ति स्कीम का ऐलान किया है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से अगले 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री बजट भाषण में उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत देश में बायोफार्मा को बढ़ावा देने के लिए मान्यता प्राप्त परीक्षण स्थलों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। हम आपको बजट के बारे में विस्तार से बताएंगे। इससे पहले आइए सुनते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में क्या कहा। To transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers which are foundational, intermediate and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training and high quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through a credit-linked subsidy program, B, scaling up and modernization of livestock enterprises, C, enhanced creation of livestock, dairy and poultry enhanced creation of livestock, dairy and poultry focused integrated value chains, and D, encourage creation of livestock farmer producer organizations. High value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes and create new employment opportunities, we will support high value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers,
depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. चलिए हम आपको इस बजट के बारे में विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस बजट के मुख्य बिंदु क्या-क्या हैं जिस पर हम लोगों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश की बजट पहली बार रविवार को किया गया है। यह बजट पेश आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है कि निर्मला रमन ने रविवार को ये बजट पेश किया है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन ये पहली बार है कि रविवार को ये बजट पेश किया गया है। वहीं बजट में किसानों को लेकर उनकी जो तकनीक से जोड़ने की पहल थी, भारत विस्तार AI एग्री टूल का भी ऐलान किया गया है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को लेकर भी बात रखी गई है। अगर हम बात करें देश को मिलने वाली 3 इस बार जो है एम्स देश को कौन कौन सी मिल सकती है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देश को इस बार 3 नए एम्स मिलने वाले हैं। वित्त मंत्री ने साफ साफ ऐलान किया है कि इस बार भारत को 3 नए एम्स मिलेंगे। भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने पर ज्यादा जोर दिया गया है। भारत को इस बार मेडिकल हब बनाने के लिए ज्यादा जोर दिया गया है और शिक्षा से लेकर रोजगार और उद्यम के लिए बनेगी हाई पावर कमेटी। PROI के नियम निवेश के लिए भी नियम हुए हैं आसान। इस बार PROI के लिए इस बार नियम जो है आसान किए गए हैं। अगर हम बात करें विदेश यात्रा की, तो विदेश यात्रा को लेकर जो उन पर टैक्स लगते हैं उनमें भी बड़ी राहत देखने को मिली है। विदेश यात्रा और उन पर जो पढ़ाई को लेकर जो टैक्स लगती है उस पर भी थोड़ी राहत दी गई है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बड़ी बात है। तो FM का विदेशी संपत्ति खुलासे और टैक्स सुधारों पर ऐलान किया गया है। वहीं अगर हम बात करें कि जो लोग विदेश यात्रा पर TDS देते थे उनको भी उस चीज को भी घटाया गया है और साथ ही मछली पालन हो, पशुपालन और हाई वैल्यू कृषि में किया गया है निवेश। जो लोग इस चीजों में निवेश कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस बार निवेश करने की उनको करना चाहिए। और साथ ही उत्तर भारत में जो स्थापित होगा वो है निमहांस 2.0। इस बार उत्तर भारत में निमहांस 2.0 भी विस्थापित किया जाएगा। अगर हम बात करेंगे दिव्यांगजन कौशल योजना का भी इस बार ऐलान किया गया है। दिव्यांगजन कौशल योजना का इस बार के बजट में इसका ऐलान किया गया है। वहीं हिमाचल से लेकर पश्चिम घाट तक टिकाऊ माउंटेन ट्रेल्स भी बनाए जाएंगे। हिमाचल से लेकर पश्चिम घाट तक टिकाऊ माउंटेन ट्रेल्स को बनाने की बजट पेश की गई है और राजकोषीय घाटा इस बार 4.3% ही रहने का अनुमान लगाया गया है। इस बार जो घाटा उसे सिर्फ 4.3 का ही अनुमान लगाया गया है। अगर हम बात करें न्यू इनकम टैक्स एक्ट
1 से। तो अगर हम बात करें न्यू इनकम टैक्स पर, तो वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को इनकम टैक्स से छूट दी गई है। साथ ही 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। ये भी बजट में पेश किया गया है। रियल एस्टेट के रिसाइकलिंग के लिए भी योजना है। मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। वैश्विक बायोफार्मा निर्माण केंद्र के रूप में भारत को विकसित करने के लिए बायोफार्मा शक्ति, जिसका कुल परिव्यय 10,000 करोड़ रुपए है, बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन के लिए अगले 5 वर्षों में इकोसिस्टम का निर्माण करेगी। ये सारी जो मुख्य बिंदु थी उसके बारे में हम आपको बता रहे थे, और अब हम थोड़ी विस्तार से जान लेते हैं कि इस बार बजट में क्या क्या पेश किया गया है। तो रणनीति में शामिल है 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान NIPER और 7 वर्तमान संस्थानों के उड्डयन के साथ बायोफार्मा पर केंद्रित नेटवर्क। यह 1000 मान्यता प्राप्त भारत क्लिनिक जांच स्थलों के एक नेटवर्क का निर्माण करेगा। अगर हम बात करें वैश्विक मानक हासिल करने तथा एक समर्पित वैज्ञानिक समीक्षा कैडर व विशेषज्ञों के माध्यम से समयावधि मंजूर करने के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को मजबूत किया जाएगा। श्रम गहन वस्त्र क्षेत्र के लिए 5 उपभोगों के साथ एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है। रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए युग के फाइबरों में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना, मशीनरी प्रौद्योगिकी उड्डयन और सामान्य परीक्षण एवं प्रमाण केंद्रों के लिए पूंजीगत सहायता के साथ पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना, मौजूदा योजनाओं को एकीकृत एवं सुदृढ़ करने और बुनकरों एवं कारीगरों के लिए लक्षित सहायता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ वस्त्र और परिधानों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स इको पहल, उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से वस्त्र कौशल इकोसिस्टम के आधुनिकीकरण और उड्डयन के लिए समर्थन 2.0 लागू किया गया है। ये सारी चीज थी जो फिलहाल आज रविवार को बजट में पेश किया गया है, और निर्मला सीतारमण ने कुछ मेन चीजों पर जो फोकस किया है उसमें किसान है, बुनकर है, इन सारी चीजों पर कुल मिलाकर ध्यान रखा गया है। फिलहाल के लिए बने रहें और देखते रहें मिरर मीडिया।